Good morning students. Today we are going to see the remaining part from the chapter number 3, that is part number 4. How many squares? Till now we have seen that inside the square grid we have counted the full square as well as separately, and how many half squares are there we have calculated. Accordingly, full square and the half square we have added, and then we got the area of the given figure. Now we are going to see further. There are so many figures are there which is in your book, textbook, chapter number 3. Accordingly, you have to open page number 40. So let us see in our textbook. Now see, we have already seen this figure. How many were there in this whole big paw of tiger? I have counted total full squares. Total full square, how many were there? Total full square were 100 on that day. Okay, if you remember, total full square was 100. And how many half square were there? Half square, if you are going to see, like this is also half, this is also half. So how much it was there? It was 14. You can see this is 14. So naturally half of 14 is going to be, you cancel it, it will become 7. So if you add that, full square was 100. So the total area became 107 square centimeter of this big size paw. Okay, now let us come to the page number 40. If you are going to see, there are the two students. Okay, now what they are talking, how many squares in this figure? What is the area of this triangle? She is asking. Now this boy, what he is explaining, the triangle is half of the rectangle. Now rectangle, how many square centimeter? What is the area of the rectangle? If you see, this is the one, another is the one. So the whole rectangle has become, the area of the rectangle is 2 square centimeter. So its area is of triangle. I am talking of triangle. She is asking, this girl is asking कि what is the area of this triangle? ये इस लड़की को बता रहा है कि ये रेक्टेंगल का पूरा एरिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसका आधा है ये ट्राइंगल. तो फिर आधा मतलब हाफ लिखा, और ये किसका एरिया है? रेक्टेंगल का. तो 2 कैंसिल किया, व्हाट इट बिकेम? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. यू आर एबल टू गेट इट? ओके. Now come to this figure. Is this shape half of the big rectangle? इसमें पूछा गया है कि भाई ये क्या हाफ है? ये देखो अब इसमें कितना है, आप अगर इसमें गिनोगे तो this is become 4, यहाँ पर 4, 1 2 3 4 and this becomes 2. तो 4 into 2 is 8 square centimeter. That is the 8 square centimeter area of the big rectangle. Yes. और ये जो फिगर है ब्लू कलर का, ये इसका हाफ है. ठीक है, ये इसका हाफ है. तो ये लड़का सोच रहा है, ही इज थिंकिंग सो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 8 इसका पूरा है रेक्टेंगल का, तो इसका कितना हो गया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब ये वाला फिगर भी मैंने आपको थोड़ा बताया था, इफ यू रिमेंबर. मैंने आपको जैसे ये वाला बताया था फिगर, इफ यू रिमेंबर दिस फिगर. लेट अस सी दिस फिगर. इसमें कितने हैं? हाउ मेनी फिगर्स आर हियर? Figure 1 2 3 4. So how many full square? 4. Now how many half are there? Count. Half कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हाफ कितने हुए? देखो मैम ने लिखा है हाफ इंटू 8. तो दिस बिकेम, आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 हो गया. फुल स्क्वायर कितने हैं? 4 है. 1 2 3 4. और हाफ कितने हैं? 8 है. तो इसको आपने कैंसिल किया तो दे ऑल्सो बिकेम 4. तो टोटल कितना बना? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, टोटल कितना बना?
8 square centimeter. Now if you see the figure number here, figure number B, देखो B में देखिए आप, ये एक फुल है, दिस इज वन फुल, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो कितने हुए? 4 फुल है. और हाफ कितने हैं? लेट अस काउंट फ्रॉम हियर दिस एंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितने हुए? 12 हुए. तो यहाँ पर मैम ने लिखा है, यू सी दिस, देखिए ये है फिगर नंबर बी. तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर इज 4, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर इज 12. अभी मैम ने काउंट करके बताया. तो 12 इंटू हाफ 2, 12 से कैंसिल किया 6. तो टोटल फुल स्क्वायर 4 एंड हाफ बिकेम 6. तो टोटल कितना हो गया? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द एरिया? सो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. एरिया ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, लाइक दिस. ए का भी ऐसा ही है. ए का आप देखोगे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितने हैं? 3 है. बुक में आप देखिएगा 3 है. और नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितने हैं? 6 है हाफ स्क्वायर. तो आपने कैंसिल किया, इट बिकेम 3. तो 3 प्लस 3, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 3 प्लस 3, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू 6 square centimeter. Like that, the figure C is also like that. Number of full square is 2 and number of half square यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं. तो 2 को कैंसिल किया तो 4 से it became 2. तो total it became 4. The area of figure C is 2 plus 2, 4 square centimeter. ठीक है, ये आपको बुक में देखना है and you have to write like this. You can see, you have to write like this. You can see the figure and you can count it. Here I can show you 1, 2 and how many half? 1, 2, 3 and 4. Madam has done like that. The remaining you have to do, that is your homework. D, figure D and E you have to do your own. Okay? मैडम ने अपने आप किया है लेकिन मैडम का कॉपी नहीं करना. You have to do your own. ठीक है? Now from figure, from page number 40 to come to page number 41. Here you can see there are inside one big rectangle there are 2 triangles are there. 2 triangles are drawn. One is red, another is blue. Both the big triangle in this rectangle have the same area. क्या बोल रही है समीना? समीना बोल रही है blue and red triangle दोनों का एरिया जो बोल रही है, both the big triangles in the rectangle they have the same area. मतलब ब्लू का और ट्राइंगल का सेम, दोनों का सेम एरिया है. लेकिन ये क्या बोल रहा है सदीक? अरे लेकिन ये तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं. दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो एरिया कैसे एक हो सकता है? लेकिन अब क्या बोल रही है जो सदीक है वो क्या बोल रहा है? द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. ब्लू जो है वो बिग रेक्टेंगल, ये बड़ा सा रेक्टेंगल का हाफ है. लेकिन रेक्टेंगल, बिग रेक्टेंगल कितना है बड़ा? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये कैसे आप काउंट करोगे? काउंट करो 1 2 3 4 5. ये 5 हो गया. और यहाँ पर कितना? 1 2 3 4. तो 5 इंटू 4 20 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ ना? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. So here he has written the area of big rectangle is 20 square centimeter. So the area of the blue triangle is 10 square centimeter. 10 हो गया. तो अब समीना पूछती है सदीक से, फिर रेड ट्राइंगल का कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही समीना ने कहा था कि ब्लू एंड रेड का सेम एरिया है. तो नेचुरली द रेड ट्राइंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्योंकि ब्लू का 10 है तो रेड का भी 10 होगा. ठीक है? दिस आई विल शो ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर सदीक. in it there are 2 halves of 2 different rectangles. अब ये वाले बड़े से रेक्टेंगल में 2 रेक्टेंगल हैं, एक रेड एक ग्रीन. और ये क्रो क्या बोलता है, क्या बोल रहा है? इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है. नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द 2 रेक्टेंगल्स सदीक इज टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल? एक्सप्लेन. अब इसने क्या पूछा? क्रो ने पूछा कि 2 रेक्टेंगल्स के एरिया बताओ और एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल कितना है. अच्छा चलो अब हम रेड
रेक्टेंगल का देखते हैं। इसमें आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4। मैं कह रही हूँ रेक्टेंगल का, तो 4 और यहाँ पर 1 2 3, तो 4 एंड 3। तो एरिया ऑफ रेड रेक्टेंगल इज 3 इंटू 4, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस। व्हाट अबाउट द ग्रीन? ग्रीन का आप काउंट करें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रीन रेक्टेंगल का 4 इंटू ग्रीन रेक्टेंगल। ओके, एंड दिस इज रेड रेक्टेंगल। तो 4 इंटू 2 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ग्रीन का है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया और रेड का है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट अनदर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल पूछ रही है। रेड ट्राइंगल, ये रेड ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप देखोगे इसमें कितने फुल हैं? 1 2 3। एरिया ऑफ द ट्राइंगल में आप कितना गिनोगे? 1 2 3 फुल है, फुल है ना, 1 2 3। और हाफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए ना, 6। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 + 6 इट इज गोइंग टू बी, ये पूरे का हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो मैडम अभी आपको ब्लैक बोर्ड में लिख के कराएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यस, you are right, and you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. Help Sadiq in finding some more such triangles. Draw at least 5 more. ये क्या बोल रहे हैं? सदीक को आप हेल्प करो, ऐसे अगर आप और 5 ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर, इस तरह से आप 5 ट्राइंगल और ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सदीक ने अभी बताया कि रेड और ब्लू के दोनों के एरिया कितने हैं? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कैन यू ड्रॉ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके, जिसका एरिया उन सारे अलग अलग 5 ट्राइंगल्स का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो? क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? ये सदीक आपको कह रहा है और आपको हेल्प करने के लिए कह रहा है। तो लेट अस सी फ्यू थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके बच्चों, यहाँ पर जो फिगर मैंने अभी डिस्कस किया है, एक बार मैडम बता रही है, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, सो दैट अदर फिगर्स जो हैं उसे भी आप ठीक तरह से कर सकें, और बुक के जो बुक में दिए गए हैं, एंड यू कैन राइट योर ओन एंड यू कैन डू योर ओन। देखिए ये वाले फिगर में हम देखेंगे, हियर इफ यू सी हियर, दिस इज द फिगर, दिस इज द रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू हैव टू काउंट फॉर, देयर आर 2 रेक्टेंगल, 2 ट्राइंगल, वन इज ब्लू। ब्लू का कितना है? ये वाला ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू का हमें देखना है एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल। तो इसमें फुल स्क्वायर कितने हैं? फुल स्क्वायर इज इक्वल टू, यू हैव टू काउंट हियर, सो इट इज गोइंग टू बी 4। ओके, 1 2 3, यू आर गोइंग टू सी हियर 1 2 3 4 5 6। so full squares are 6. what about half square? HALF, half लिखो या ऐसे 1/2। half squares is equal to how many? कितने हुए यहाँ पर हाफ स्क्वायर्स? अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, we are going to count here 1 2 3 4 5 6, yes 6 हुए टोटल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर आप गिनोगे तो ये हो जाएंगे टोटल, अगर आप करोगे यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 6 + 4, it is going to be 10. Okay, so this is going to be 10. So half of that it is going to be, ये देखिए एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8। so half कितने हुए? 8 स्क्वायर। तो आपने काटा तो ये हो गया 4, तो 6 + 4 10।
तो ये हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया हुआ? एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल का 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे ही आपको येलो का भी निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट फॉर द येलो ऑल्सो इनसाइड द, जब मैम ने अभी आपको बताया वैसे ही आपको निकालना है येलो के लिए भी। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर येलो ऑल्सो। येलो के लिए मैडम आपको बता रही है येलो ट्राइंगल फुल स्क्वायर कितने हैं आपको गिनना है। फुल स्क्वायर कितने हैं? दैट इज 1 2 3 4 5। ओके, 5 आर देयर। यस, 1 2 3 4 5। दिस इज 5 and how many are there for half? 1 2 3 4 5 7 8 10. Yes, so this became half squares is equal to 10. तो 10 का आधा कितना हुआ? Again 5. So this is going to be 10. So 10 square centimeter is the area of the yellow triangle. Okay, 10 हुआ। ये मैडम ने आपको समझाया है हाउ टू काउंट इट। यू हैव टू काउंट फॉर अदर फिगर्स। पेज नंबर 42 में देखिए ये समीना और सदीकी क्या बोल रहे हैं कि भाई इसी तरह से आपको 5-5 अलग ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं पेज नंबर 41 में, जिसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। अब समीना ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर सुरुचि, यहाँ पर एक ही सुरुचि है। सुरुचि ड्रू 2 साइड्स ऑफ शेप। शी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड्स so that its area is 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, आसिफ ने अपना काम कर दिया। अगर आसिफ का देखोगे उसने 10 स्क्वायर कैसे बनाया, ये देखो फुल कितने हैं 1 2 3 4 हो गए। अच्छा, 4 एंड यहाँ पर हो गए 5। ओके, अब अगर आप ये 5 हो गए और अगर आप आधा गिनोगे हाफ स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 है ना। तो फुल स्क्वायर कितने हैं? फुल स्क्वायर्स इक्वल टू 5 एंड हाफ स्क्वायर 10 है। तो 10 का आधा कितना हुआ 5। तो टोटल हो गया ना 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आसिफ ने ड्रॉ कर दिया। तो अभी जो हमने देखा है जिसमें दोनों आसिफ ट्राई कर रहा है सुरुचि के साथ, वैसे ही आपको और भी ड्रॉ करके ट्राई करना पड़ेगा and find out to draw such figures in which the area becomes 10 square centimeter. Hope you are going to try at your home and you will like how you are going to count full and half. Please do it at your home, this activity. Thank you.